Hello students, I am Anurag Rai. In my previous video, I had explained the adjective clause. In this video, I am going to explain the noun clause. As you can see on the top of the board, the heading written by me, noun clause. So let us have the definition first. The noun clause is a part of a complex sentence which has its own subject and predicate and does the work of a noun. In Hindi we can say noun clause complex sentence का ही एक भाग होता है जिसमें उसका खुद का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है और वो नाउन का काम करता है. सो लेट अस हैव अ लुक एट द लेफ्ट हैंड साइड of the board here. At the top I have written the conjunctions with which a noun clause begins. So have a look: that, what, whatever, when, why, where, which, who, whom, whomever, whichever, whoever, if, whether. So these are the conjunctions with which a noun clause begins. Now I tell you some of the important rules of making noun clause. So remember one thing, you will be given two sentences in your question papers and you have to combine the two sentences using the noun clause. So if you find any question word in any of the two sentences, the noun clause will begin with that question word. If you don't find any question word in any of the two sentences, the noun clause begins with that. In Hindi आपको क्वेश्चन पेपर में दो सेंटेंसेस दिए जाएंगे, आपको नाउन क्लॉज का प्रयोग करते हुए उन्हें कंबाइन करना है. यदि दोनों में से किसी एक सेंटेंस में आपको कोई क्वेश्चन वर्ड दिखता है तो नाउन क्लॉज उस क्वेश्चन वर्ड से बनेगा. यदि क्वेश्चन वर्ड नहीं दिखता है तो नाउन क्लॉज दैट से बनेगा. और एक बात और याद रखें, यदि एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी ऐसा नाउन जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता. एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ अ नाउन विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड. तो इन द केस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन we use the conjunction what for making noun clause. So there are 5 types of noun clauses. Number 1 is, as you can see on the board at the left hand side, number 1, the first type of noun clause is the subject of a verb. So this type of noun clause is put before a verb. Because this clause acts as the subject of a verb. So the subject of a verb is put before the verb. So here the first example is given, he is a thief. आप बोर्ड पर देख सकते हैं, he is a thief, full stop. सेकेंड सेंटेंस दिया है, it is known to all. इन हिंदी वह एक चोर है, it is known to all, ये सबको पता है. तो इन दोनों सेंटेंसेस में चूँकि कोई भी क्वेश्चन वर्ड नहीं दिया है इसलिए नाउन क्लॉज दैट से स्टार्ट होगा. और दूसरी बात, चूँकि ये किस टाइप का नाउन क्लॉज है, द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, वर्ब का सब्जेक्ट. तो वर्ब का सब्जेक्ट वर्ब के पहले रखा जाता है, तो ये क्लॉज दैट से शुरू होगा और वर्ब के पहले इसे रखा जाएगा. तो हमारा आंसर बनता है दैट ही इज़ अ थीफ इज़ नोन टू ऑल. And the underlined portion, this one, that he is a thief, this underlined portion is your noun clause. So the second example is, how did the thief enter the house? चोर मकान में कैसे घुसा? It is a mystery. सेकेंड सेंटेंस दिया है, it is a mystery. हिंदी में फर्स्ट सेंटेंस का अर्थ है कि चोर मकान में कैसे घुसा और सेकेंड का अर्थ है यह एक रहस्य है. So here in this example the question word how is given, so the noun clause will be made with this question word how. So the answer will be, how the thief entered the house is a mystery. And remember one thing, that noun clause is always made as
a declarative or an assertive sentence. Even if the main clause is a question, the noun clause is always made as declarative or assertive. So declarative बनाने के लिए ये पास्ट इंडेफिनेट का वाक्य दिया है, हाउ डिड द थीफ एंटर द हाउस, तो इसे असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए डिड को हटाना पड़ेगा और वर्ब एंटर की सेकंड फॉर्म लानी पड़ेगी. तो हमने लिखा है हाउ द थीफ एंटर्ड द हाउस इज़ अ मिस्ट्री, मतलब चोर मकान में कैसे दाखिल हुआ ये एक रहस्य है. तो ये इज़ यहाँ पर वर्ब है और इस वर्ब के पहले सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब की पूर्ति करता हुआ ये सब्जेक्ट के रूप में यहाँ ये जो अंडरलाइंड पोर्शन है ये नाउन क्लॉज है. हाउ द थीफ एंटर्ड द हाउस, ये अंडरलाइंड पोर्शन आपका नाउन क्लॉज है. तो दूसरे टाइप का जो नाउन क्लॉज होता है वो है द ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब, किसी ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट. तो यू नो वेल दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इज़ ऑलवेज पुट आफ्टर द वर्ब. सो दिस टाइप ऑफ नाउन क्लॉजेज आर पुट आफ्टर द वर्ब ऑफ द मेन क्लॉज. So here are the examples worked out as you can see. Example number 1, he said something, मतलब उसने कुछ कहा. सेकंड सेंटेंस है I could not hear, मैं सुन नहीं सका. तो I could not hear, मैं सुन नहीं पाया. तो मैं क्या नहीं सुन पाया, इसे गौर कीजिए. something, he said something, उसने कुछ कहा. तो ये जो something उसने कहा उसे मैं सुन नहीं पाया. तो जब हम नाउन क्लॉज बनाएंगे यहाँ पर ये जो समथिंग है, जो भी चीज़ उसने कहा जिसे मैं सुन नहीं पाया, ये समथिंग जो है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन को रेफ़र करता है. तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, नाउन क्लॉज व्हाट से शुरू होता है. तो हमारा आंसर होगा आई कुड नॉट हियर व्हाट ही सैड, जो उसने कहा वो मैं सुन नहीं पाया हिंदी में. और व्हाट ही सैड, दिस अंडरलाइंड पोर्शन इज़ अवर नाउन क्लॉज. द सेकेंड एग्जाम्पल इज़ हाउ डिड ही डाई, अर्थात वह कैसे मर गया. डू यू नो, क्या तुम जानते हो. तो बोथ द टू गिवन सेंटेंसेस आर क्वेश्चंस. तो इसका इन दिस एग्जाम्पल यू कैन सी द क्वेश्चन वर्ड हाउ इज़ गिवन. सो द नाउन क्लॉज विल बिगिन विद द क्वेश्चन वर्ड हाउ. तो आंसर हमारा बनेगा डू यू नो हाउ ही डाइड. सो रिमेंबर वन थिंग, हाउ ही डाइड हमने क्वेश्चन वर्ड के बाद ही डाइड ये असर्टिव या डिक्लेरेटिव में बनाया है. जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि द नाउन क्लॉज इज़ मेड एज अ डिक्लेरेटिव और एन असर्टिव सेंटेंस इवन इफ द मेन क्लॉज इज़ अ क्वेश्चन. डू यू नो हाउ ही डाइड. नाउ come to the right hand side of the board where the third type of noun clause is written at the top of the board. You can see number 3, the object of a preposition. So the third type of noun clause is the object of a preposition, किसी preposition का object. prepositions आप जानते ही हैं क्या होते हैं, to, in, on, at, with, for, from, by, ये प्रीपोजिशंस होते हैं. तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में जो नाउन क्लॉज आएगा, तो ये भी आपको पता है कि वर्ब का ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद लगता है. इसी प्रकार द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन इज़ ऑल्सो पुट आफ्टर द प्रीपोजिशन. सो द एग्जाम्पल नंबर 1 इज़ गिवन हियर, हाउ डज द मेडिसिन अफेक्ट, मतलब दवा कैसे असर करती है. द सेकेंड सेंटेंस इज़ हिज हेल्थ डिपेंड्स ऑन इट, मतलब उसका स्वास्थ्य इस बात पर निर्भर करता है. इट पर थोड़ा सा आप गौर करें, हिज हेल्थ डिपेंड्स ऑन इट, उसका स्वास्थ्य इस बात पर निर्भर करता है. तो इस बात पर मतलब किस बात पर, तो इट के लिए ये पूरा सेंटेंस दिया है कि हाउ डज़ द मेडिसिन अफेक्ट, दवा कैसे असर करती है, इस बात पर निर्भर करता है. तो जब हम क्लॉज बनाएंगे तो इट को हटा देंगे, क्योंकि जब पूरा नाउन आ जाता है तो नाउन के आने पर प्रोनाउन हट जाता है. तो जब नाउन क्लॉज पूरा आ जाएगा तो इट प्रोनाउन जो है वो हट जाएगा. एंड रिमेंबर हियर द क्वेश्चन वर्ड हाउ इज़ गिवन.
So the noun clause will be made with the question word how. So the answer will be his health depends on how the medicine affects. मतलब उसका स्वास्थ्य इस बात पर निर्भर करता है कि दवा कैसे असर करती है. एग्जाम्पल नंबर 2, ही डिड समथिंग. यहाँ पर आप समथिंग पर गौर करें. ही डिड समथिंग मतलब उसने कुछ किया. सेकंड सेंटेंस है ही वॉज पनिश्ड फॉर इट. इट पर भी गौर करें. उसे इसके लिए सज़ा दी गई. दोबारा से बोलना चाहूँगा, ही डिड समथिंग उसने कुछ किया. ही वॉज पनिश्ड फॉर इट उसे इसके लिए सज़ा दी गई. ये इसके लिए मतलब किसके लिए? तो ये इट जो है वो समथिंग के लिए, जो भी कुछ उसने किया उसके लिए उसे सज़ा दी गई. तो हियर इन दिस एग्जाम्पल इट एंड समथिंग रेफर टू अ सेम द सेम नाउन. सो हियर we can see something is an abstract noun, and for abstract nouns we use question word what. So the answer will be he was punished for what he did. He was punished for what he did मतलब उसे उसके लिए सज़ा मिली जो उसने किया. Now look at the fourth type of the noun clause which is the complement of a verb. मतलब किसी वर्ब का पूरक. कॉम्प्लीमेंट यानी पूरा करने वाला, किसी अधूरी चीज़ को पूरा करने वाला. तो जब ये नाउन क्लॉज का ये भाग किसी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है, पूरक है, तो इसका मतलब कि मेन क्लॉज में जो वर्ब है वो अधूरी होती है और उस अधूरी वर्ब के बाद ये नाउन क्लॉज लग के उस अधूरी वर्ब के सेंस को पूरा कर देता है. इसीलिए इसको पूरा करने वाला या पूरक या कॉम्प्लीमेंट बोला गया है. तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखें. फर्स्ट एग्जाम्पल है द एक्सीडेंट विक्टिम वॉज डेड. सेकेंड सेंटेंस इसी का फर्स्ट एग्जाम्पल का सेकेंड सेंटेंस है द पुलिस फाउंड दिस. तो यहाँ मैं दिस को अंडरलाइन करना चाहूँगा और आप थोड़ा देखें ये दिस किसके लिए दिया है. द एक्सीडेंट विक्टिम वॉज डेड मतलब दुर्घटना पीड़ित मर गया था. द पुलिस फाउंड दिस. ये दिस जो हमने लिखा है कि पुलिस को ये बात पता चली. ये बात कौन सी बात? ये ऊपर पूरी वाली बात द एक्सीडेंट विक्टिम वॉज डेड. तो जब हम नाउन क्लॉज बनाएंगे तो यहाँ से दिस को हटा देंगे. दूसरी बात आप याद रखिएगा कि चूँकि ये नाउन क्लॉज का जो भाग है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब है, वर्ब का पूरक, तो इसे वर्ब के मेन क्लॉज की वर्ब के बाद रखा जाएगा. मतलब मेन क्लॉज की अधूरी वर्ब के बाद रखा जाएगा. दिस क्लॉज विल बी पुट आफ्टर द इनकम्प्लीट वर्ब ऑफ द मेन क्लॉज. सो द आंसर विल बी द पुलिस फाउंड. हियर फाउंड इज द इनकम्प्लीट वर्ब of the main clause, and after this verb found we have put the noun clause. The police found that the accident victim was dead. पुलिस ने पाया कि दुर्घटना पीड़ित मर चुका था. The second example of the fourth type of noun clause is it may rain. मतलब बारिश हो सकती है. It seems ऐसा लगता है. तो दोनों सेंटेंस ऐसे हैं, बारिश हो सकती है, ऐसा लगता है. तो हमने जब इनको कंबाइन किया तो इट सीम्स दैट इट मे रेन. सो सीम्स हियर इज़ द इनकम्प्लीट वर्ब ऑफ द मेन क्लॉज एंड द नाउन क्लॉज, दिस अंडरलाइंड पोर्शन इज़ द नाउन क्लॉज. दैट इट मे रेन, दैट इट मे रेन, दिस अंडरलाइंड पोर्शन और द नाउन क्लॉज is a complement to this incomplete verb of the main clause. It seems that it may rain. ऐसा लगता है कि बारिश हो सकती है. यदि हम that it may rain को हटा दें तो सिर्फ इतना बचता है it seems, और इसका अर्थ होता है ऐसा लगता है. तो क्या लगता है? ये अधूरा है. अब जो चीज़ लगती है वो हमने यहाँ पर लिख दी. It seems that it may rain. बंद करना. So let us have at the look on the fifth type of the noun clause which is in opposition to a noun or a pronoun. The fifth type of noun clause is in opposition to a noun or a pronoun. Opposition
मीन्स इक्वल, इक्विवेलेंट इन हिंदी। अपोजिशन का मतलब होता है समान या समकक्ष या समतुल्य। सो दिस टाइप ऑफ noun clause is put just after a noun or a pronoun of the main clause, and this type of noun clause qualifies the noun or the pronoun which it follows in हिंदी। इस प्रकार का noun clause मेन क्लॉज के किसी नाउन या प्रोनाउन के तुरंत पीछे लगता है, और जिस नाउन या प्रोनाउन के पीछे ये लगता है उसके ये समान या समकक्ष अर्थ लिए होता है। सो लेट अस हैव अ लुक एट द एग्जांपल्स वर्कड आउट हियर। एग्जांपल नंबर 1 इज़ यू आर नॉट गिल्टी। एग्जांपल नंबर 1 के 2 सेंटेंस दिए। फर्स्ट है यू आर नॉट गिल्टी, तुम दोषी नहीं हो। सेकेंड है योर स्टेटमेंट विल नॉट बी बिलीव्ड, मतलब तुम्हारे इस कथन पर विश्वास नहीं किया जाएगा। मतलब ये किसी व्यक्ति का कथन है कि वो दोषी नहीं है, और ये हम बता रहे हैं उसके कथन को, यू आर नॉट गिल्टी, तुम दोषी नहीं हो। योर स्टेटमेंट विल नॉट बी बिलीव्ड, तुम्हारे इस कथन पर विश्वास नहीं किया जाएगा। तो द आंसर विल बी, एंड वी हैव टू पुट दिस टाइप ऑफ नाउन क्लॉज just after a noun or a pronoun of the main clause. So we are putting this noun clause after the noun statement. So the answer will be your statement that you are not guilty will not be believed. इसका पूरे का हिंदी होता है तुम्हारा कथन कि तुम दोषी नहीं हो उस पर विश्वास नहीं किया जाएगा। तो स्टेटमेंट को गौर करें, स्टेटमेंट कथन, और कथन के बाद लिख रहे हैं दैट यू आर नॉट गिल्टी, कि तुम दोषी नहीं हो। तो उस व्यक्ति का कथन स्टेटमेंट भी यही है कि वो दोषी नहीं है। तो ये जो पूरा नाउन क्लॉज दिया है दैट यू आर नॉट गिल्टी, यही उस व्यक्ति का स्टेटमेंट है, कथन है। तो इस स्टेटमेंट यानी कि इस नाउन के तुरंत पीछे ये नाउन क्लॉज आ रहा है, और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिशन केस में है। मतलब ये जो क्लॉज है दैट यू आर नॉट गिल्टी, ये स्टेटमेंट के अपोजिशन में है, समकक्ष है, इक्विवेलेंट है। द सेकेंड एग्जाम्पल इज अमेरिका विल इम्पोज स्ट्रिक्ट बैन ऑन चाइना। अमेरिका चीन पर सख्त बैन लगाएगा। सेकेंड सेंटेंस है द न्यूज़ इज़ करेक्ट, ये खबर सच है। तो द न्यूज़ पर गौर करें अपन, द न्यूज़, ये खबर सच है। तो कौन सी खबर? ये ऊपर वाला पूरा स्टेटमेंट कि अमेरिका विल इम्पोज स्ट्रिक्ट बैन ऑन चाइना, कि अमेरिका चीन पर सख्त बैन लगाएगा, ये न्यूज़ है। तो ये जो न्यूज़ है ये नाउन है, इसके तुरंत पीछे ये नाउन क्लॉज लगेगा, और ये न्यूज़ और ये नाउन क्लॉज दोनों एक दूसरे के अपोजिशन केस में है, मतलब दोनों एक दूसरे के समकक्ष हैं, समतुल्य हैं, इक्विवेलेंट है। तो आवर आंसर विल बी द न्यूज़ that America will impose strict ban on China is correct. So here the underlined portion that America will impose strict ban on China, this underlined portion is our noun clause, and it is put after the noun the news, and the news and the noun clause, this noun and this noun clause are equivalent to each other. So this was our today's topic, noun clause. So students, if you like my video, please subscribe my YouTube channel Anurag Rai English Tutor for watching more videos and my latest videos on the topics of grammar. Thanks.